हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज का यह है पार्ट 23। क्वेश्चन नंबर 1101 से क्वेश्चन नंबर 1150 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज आपको सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 23। क्वेश्चन नंबर 1101. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the course given below the lists. List 1 में है A. phrase, B. indoctrination, C. slogan, D. satire. List 2 में है 1. conditioning to act along a line, 2. rewarding in words, 3. direct or indirect criticism of actions, 4. define situations and direct behavior along the desired lines. इसका करेक्ट आंसर जो वो होगा ऑप्शन बी। प्रेज टू है वो रिवार्डिंग इन वर्ड्स। बी इंडक्ट्रिनेशन जो है कंडीशनिंग टू एक्ट एलोंग ए लाइन। स्लोगन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ एक्शन। सैटायर जो है डिफाइन सिचुएशंस एंड डायरेक्ट बिहेवियर एलोंग द डिजायर्ड लाइन्स। Question number 1102. Consider the following. 1. Folkways are more generalized and wider in character than Morse. Folkways are more generalized and wider in character than Morse. 2 है Morse imply value judgments about folkways. value judgment होगा तो Morse होगा। folkways का value judgment होगा तो मोर्स होगा। ये 2 है। 3 है मोर्स आर मोर इफेक्टिव देन फोकवेज। मोर्स आर मोर इफेक्टिव देन फोकवेज इन मोल्डिंग इंडिविजुअल टेंडेंसीज। 4 है फोकवेज आर लेस डीपली रूटेड इन सोसाइटी देन मोर्स एंड चेंज रैपिडली देन लेटर। मोर्स जो है डीपली रूटेड है और ज़्यादा चेंज रैपिडली नहीं होता है। फोकवेज ज़्यादा rapidly change होता है। Of the above, which statements correctly explain the difference between folkways and Morse? A 1 and 2, B 1, 3 and 4, C 1, 2 and 3, D 1, 2, 3 and 4. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे करेक्ट है। फोकवेज या मोर्स को लेके ये जो एक्सप्लेन किया गया है सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। Question number 1103. If the alpha and omega of human existence are to be found anywhere, it is in the folkways, for we begin there and always come back to them. If the alpha and omega of human existence are to be found anywhere, it is in the folkways, for we begin there and always come back to them. This statement can be attributed to किसने ये स्टेटमेंट दिया है? ए समनो, बी डाविस, सी मार्काइवो, डी दुर्खे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए समनर। इस स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है समनर का है। Question number 1104. The behavior patterns of everyday life which generally arise unconsciously in a group are. The behavior patterns of everyday life which generally arise unconsciously in a group are A. Morse, B. values, C. folkways, D. none of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी folkways. The behavior patterns of everyday life which generally arise unconsciously in a group are folkways. Question number 1105. Consider the following. 1. They are practices that have been often repeated by multitudes of generations. 2. They are practices that tend to be followed simply because they have been followed in the past. 3. They are group accepted techniques of control implemented by specialized institutions. 4. They are loosely established compared to the laws of the above,
Which statements correctly explain the nature of customs? Customs के बारे में correctly कौन से स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए हैं? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 and 2 है ना. Customs they are practices. Customs are practices that have been often repeated by multitudes of generations. ठीक है. और customs are practices that tend to be followed simply because they have been followed in the past. कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या क्या बोले लूजली एस्टेब्लिश्ड कंपेयर टू लॉज, ऐसा कुछ नहीं है. कस्टम भी, बहुत सारे कस्टम भी लूजली एस्टेब्लिश्ड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1106. Rationality of customs is drawn from. Rationality of customs is drawn from A. Psychological satisfaction, B. Social appraisement, C. Both, D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, बोथ. Rationality of customs is drawn from psychological satisfaction and social appraisement. Question number 1107. Laws are enforced by the A. State, B. Center, C. District, D. Government. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए स्टेट. स्टेट डजंट मीन कि जैसे इंडियन स्टेट्स हुआ, जैसे सोच लीजिए तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसा स्टेट वैसे नहीं है. स्टेट एज ए पॉलिटिकल एंटिटी. स्टेट मतलब इंडिया, स्टेट मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, स्टेट उस टाइप का पॉलिटिकल एंटिटी जो है स्टेट. हुई लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ स्टेट. Question number 1108. Who said law as a body of rules are recognized? Law as a body of rules are recognized, interpreted, and applied to particular situations by the courts of the state. Who said law as a body of rules are recognized, interpreted, and applied to particular situations by the courts of the law? A. Green, B. McIver and Page, C. Weber, D. None of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी McIver and Page. McIver and Page said laws as a body of rules are recognized, interpreted, and applied to particular situations by the courts of the state. Question number 1109. Law is the most specialized agency of social control as well as a deterrent to persons in society. Law is the most specialized agency of social control as well as a deterrent to persons in society. ऐसे किसने कहा है? A. Ross, B. McIver and Page, C. Green, D. None of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रॉस. रॉस ने कहा है कि लॉ इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल एज वेल एज डिटरेंट टू पर्सन्स इन सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 1110. Law is a DS agent of social control. Law is a DS agent of social control. 1. Informal, 2. Formal, 3. Deliberate, 4. Conscious. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन होगा डी 2, 3 and 4. लॉ इनफॉर्मल नहीं है, लॉ फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल है और डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बनाने के लिए, और ये कॉन्शियस एजेंट है या कॉन्शियस एफर्ट है. क्वेश्चन नंबर 1111. Who has talked about repressive and restitutive laws? repressive restitutive law के बारे में किसने कहा है? A. Weber, B. Durkheim, C. Henry Maine, D. Hobhouse. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे एमाइल दुर्खेम. एमाइल दुर्खेम जो बोले हैं रिप्रेसिव रेस्टिट्यूटिव लॉ, जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी
मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले सोसाइटी में रिप्रेसिव लॉ काम करता है, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाला सोसाइटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ काम करता है। जैसे मॉडर्न सोसाइटी हुआ वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी पे बेस्ड है, तो ये रेस्टिट्यूटिव लॉ है। Question number 1112. Law which suppresses deviation from collectively shared values and norms is called. Law which suppresses deviation from collectively shared values and norms is called. A. Restitutive law, B. Repressive law, C. Both and B, D. None of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, repressive law. Law which suppresses deviation from the collectively shared values and norms is called. क्राइम या डिविएशन माना जाता है कॉलेक्टिव कॉन्सेंस के अगेंस्ट में कुछ हुआ है, तो कॉलेक्टिव कॉन्सेंस के अगेंस्ट में हुआ है, तो वहाँ जो लॉ प्रिवेल करता था वो रिप्रेसिव लॉ है। क्वेश्चन नंबर 1113. Primitive law is based on. Primitive law is based on A. Custom, B. Religion, C. Public opinion, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। प्रिमिटिव लॉ जो है कस्टम, रिलीजन, पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होता था। क्वेश्चन नंबर 1114. The law which distinguishes between private and public law is called. The law which distinguishes between private and public law is called. A. Primitive law, B. Modern law, C. Ancient law, D. None of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, मॉडर्न लॉ। द लॉ which distinguishes between private and public law is modern law. प्रिमिटिव सोसाइटी में प्राइवेट या पब्लिक ऐसे क्लियरली डिफाइन या डिस्टिंग्विश नहीं होता था, तो ये मॉडर्न लॉ है जो कि प्राइवेट और पब्लिक लॉ में डिस्टिंग्विशेस करता है। क्वेश्चन नंबर 1115. Laws are A. precise, D. definite, C. clear, D. all of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, laws are precise, definite and clear. Question number 1116. The compulsion of folkways in a well-knit culture is just as strong as the compulsion of style in architecture, Gothic, Renaissance and Egyptian. Whose statement is this? किसने ऐसे स्टेटमेंट दिया है? द कंपल्जन ऑफ फोकवेज इन ए वेल नीट कल्चर इज जस्ट आज स्ट्रॉन्ग आज द कंपल्जन ऑफ स्टाइल इन आर्किटेक्चर, गथिक, रिनेंसा एंड इजिप्शियन। ए ऑप्शन है ए आर रेडफील्ड, बी रूथ बेनेडिक्ट, सी टालकट पार्सन्स, डी मार्क्स वेबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1117. ह्यूमन बिहेवियर इज रेगुलेटेड थ्रू। ह्यूमन बिहेवियर किसके थ्रू रेगुलेटेड है? ए वैल्यूज, बी कस्टम्स, सी मोर्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन बिहेवियर इज रेगुलेटेड थ्रू वैल्यूज, कस्टम्स एंड मोर्स। Question number 1118. Custom is a value, B more, C folkways, D norm. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, कस्टम इज ए नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1119. Which of these statements is true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ऑल folkways आर ऑल्सो मोर्स। ऑल folkways आर ऑल्सो मोर्स, ये तो गलत है। बी ए ऑल मोर्स आर नॉट folkways। सी customs आर established modes of thought and action। डी laws आर spontaneous and cannot be changed। ये जो स्टेटमेंट जो सही है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, वो ऑप्शन सी, customs आर established modes of thought and action। customs, लॉज जो है वो तो डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है ना, तो अमेंड भी हो सकता है, मतलब कैन बी चेंज्ड। एंड ऑल मोड्स आर नॉट फोकवेज। फोकवेज ही मोड्स में डेवलप होता है, तो
और सारे फोकवेज मोड्स में डेवलप नहीं होता है, लेकिन सारे जो मोड्स है वो फोकवेज से ही डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 1120, who has classified social control into conscious versus unconscious social control? conscious unconscious social control ये जो है किसने क्लासिफाई किया है इसे? ए किम्बल यंग, बी गोरविस, सी कोले, डी मोरे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी कोले। कोले has classified social control into conscious versus unconscious social control. Question number 1121. A driver applying brakes on seeing the red light is an example of. ड्राइवर रेड लाइट देखा तो ब्रेक दबाया, किस टाइप का एक्शन है? ए डिलीवरेट, बी अनकॉन्शियस, सी कॉन्शियस, डी ऑर्गेनाइज्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी अनकॉन्शियस। ए ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन सीइंग द रेड लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकॉन्शियस। मतलब रेड लाइट ऐसे हैबिचुएटेड होते हैं तो अनकॉन्शियसली ब्रेक अप्लाई करते हैं, रेड लाइट पे बंद करना है, इधर रुकना है, तो वो डिलिबरेट एक्शन नहीं होता है, अनकॉन्शियसली वो ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1122. सोशल कंट्रोल हेल्प्स इन निफिंग deviant tendencies in the board are the words of. Social control helps in nipping deviant tendencies in the board are the words of. social control जो है मतलब डेविएंट बिहेवियर या टेंडेंसी जो डेवलप होने से पहले उसको बंद करता है, तो निपिंग करता है। तो ये किसने कहा है? ए टालकट पार्सन्स, बी कोले, सी किम्बल यंग, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए टालकट पार्सन। सोशल कंट्रोल हेल्प्स इन निपिंग डेविएंट टेंडेंसीज इन द बॉडी आर द वर्ड्स ऑफ टालकट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 1123. Ridicule and ostracism are examples of. Ridicule and ostracism are examples of. A direct form of social control, B indirect form of social control, C conscious form of social control, D unconscious form of social control। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। Ridicule and ostracism are examples of direct form of social control, जो कि प्राइमरी ग्रुप में होता है। जो रिडिकुल ऑस्ट्रासिज्म डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल प्रिवेलेंट प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1124. DS bridges the gap between expected and actual behavior. 23 का था 24. DS bridges the gap between expected and actual behavior. A social deviance, B social control, C social behavior, D none of these। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल ब्रिजेस द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर के बीच जो मतलब तालमेल रखता है वो है सोशल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 1125. The earliest source of law is A custom, B religion, C equity, D judicial decisions। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कस्टम्स। द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम। क्वेश्चन नंबर 1126. कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन। कॉमन लॉ किसके ऊपर बेस होता है? ए कस्टम, बी मोर्स, सी फोकवेज, डी नॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कस्टम। कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम। क्वेश्चन नंबर 1127. लॉ इज ए जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन एनफोर्स्ड बाय ए सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। हु स्टेटेड दिस? ये जो स्टेटमेंट किसने दिया है? लॉ
is a general rule of external action enforced by a sovereign political authority. A. Pollock, B. Holland, C. Ross, D. Small. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये ऑप्शन बी हॉलैंड। हॉलैंड ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है, लॉ इज ए जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन एनफोर्स्ड बाय ए सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 1128, in civilized societies Moors generally tend to take the form of, in civilized society में Moors किस टाइप का फॉर्म को मतलब ट्रांसफॉर्म होता है या चेंज होता है? ए लॉज, बी ट्रेडिशंस, सी रोल्स, डी नॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए लॉज। इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज Moors generally tend to take the form of laws, legally bound होता है। Question number 1129, DS is a make, custom is a growth। DS is a make, custom is a growth। ऑप्शन है ए more, बी folkways, सी law, डी civilization। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी लॉ। लॉ इज ए मेक, कस्टम इज ए ग्रोथ। लॉ डिलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। कस्टम जो है टाइम के हिसाब से ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 1130, हु हैज डिफाइंड फैशन as the socially approved sequence of variation on a customary theme। फैशन को ऐसे किसने डिफाइन किया है? द सोशली अप्रूव्ड सीक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑन ए कॉस्ट्यूमरी थीम। ए स्पेंसर, बी कोले, सी कोहेन, डी मैकआइवर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी मैकआइवर। मैकआइवर ने फैशन को ऐसे डिफाइन किया है, सोशली अप्रूव्ड सीक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑन ए कॉस्ट्यूमरी थीम। Question number 1131, MacIver has regarded the following as functions of Moors। MacIver has regarded the following as functions of Moors: A. Determining individual behavior, B. Identifying the individual with the group, C. Guarding solidarity, D. All the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ऑल द अबव। मैकआइवर हैज रिगार्डेड द फॉलोइंग एज फंक्शंस ऑफ मोर। ये सारे मोर्स के फंक्शन है अकॉर्डिंग टू मैकआइवर। डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल विद द ग्रुप एंड गार्डिंग सॉलिडारिटी। क्वेश्चन नंबर 1132, Sumner holds that the DS are so powerful that they can make anything seem right। Sumner holds that the DS are so powerful that they can make anything seem right। A. Norms, B. Mores, C. Laws, D. Propaganda। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन मोर्स, ऑप्शन बी मोर्स। Sumner holds that the Moors are so powerful that they can make anything seem right। Question number 1133, DS needs a special agency for enforcement। किसके लिए स्पेशल एजेंसी चाहिए एनफोर्समेंट के लिए? किसके एनफोर्समेंट के लिए स्पेशल एजेंसी जरूरत है? ए कॉस्टम, बी लॉ, सी फोकवे, डी रिलीजन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी लॉ। लॉ नीड्स ए स्पेशल एजेंसी फॉर एनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 1134, DS is a group choice, style is an individual adaptation। स्टाइल जो है इंडिविजुअल अडेप्टेशन है और क्या जो है ग्रुप चॉइस है। ए लॉ, बी नॉर्म, सी फैशन, डी कॉस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है फैशन। फैशन इज ए ग्रुप चॉइस, स्टाइल इज एन इंडिविजुअल अडेप्टेशन। कोई हीरो ऐसे स्टाइल में बाल रखा या वैसे फैशन में ड्रेस पहना तो वो स्टाइल हुआ, मतलब उसका इंडिविजुअल स्टाइल हुआ। जब उसको यंग जनरेशन एक्सेप्ट किया या उसी टाइप का स्टाइल अपनाया तो वो फैशन बन गया। जैसे धोनी स्टाइल का फैशन बन गया या किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड हीरो या हीरोइन का फैशन जो बन जाता है।
उनका जो इंडिविजुअल स्टाइल टर्न्स इनटू फैशन। क्वेश्चन नंबर 1135, ये गया 34, ये वाला 35। DS prescribes the detailed formalities for ceremonious occasions. DS prescribes the detailed formalities for ceremonious occasions. A. Norms, B. Course, C. Etiquette, D. Manners. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, एटिक्वेट। एटिक्वेट prescribes the detailed formalities for ceremonious occasions. Question number 1136. Who regards law as codified Morse? Codified Morse law. Who regards laws as codified Morse? Laws को किसने codified Morse सोचा या बोला है? A. Somno, B. Page, C. Cohen, D. MacIver. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, Somno. Somno regards laws as codified Morse. Question number 1137. DS is concerned with frivolous matters. DS is concerned with frivolous matters. A. Law, B. Fashion, C. Custom, D. Norms. Norm. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, फैशन. फैशन इज कंसर्न विथ फ्रिवोलस मैटर्स. Question number 1138. DS imply a value judgment about the DS. A. Customs habits, B. Conventions etiquettes, C. Mores and folkways, D. Laws and mores. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, mores imply a value judgment about the folkways. folkways के बारे में जो value judgment ऐड हो जाएगा तो होगा mores. Question number 1139. DS may change with one's social status but not mores. DS may change with one's social status but not mores. A. Habits, B. Customs, C. Laws, D. Folkways. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, folkways. Folkways may change with one's social status but not mores. social status चेंज होने पे folkways चेंज होता है, लेकिन मोर्स नहीं चेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 1140. DS are the result of deliberate design. DS are the result of deliberate design. A. Folkways, B. Laws, C. Habits, D. Etiquettes. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, laws. Laws are the result of deliberate design. Question number 1141. DS is an individual phenomenon. कौन सा एक इंडिविजुअल phenomenon है? A. Style, B. Habit, C. Fashion, D. Convention. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, स्टाइल. स्टाइल इज एन इंडिविजुअल phenomenon. Question number 1142. DS may not always be rational. DS may not always be rational. ऑप्शन से ए. Laws, B. Customs, C. Mores, D. Folkways. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, Mores may not always be rational. जैसे मतलब सेम गोत्र में मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है, एक मोर है नॉर्थ इंडिया में, सेम गोत्र में मैरिज नहीं हो सकता, भाई बहन माने जाते हैं, तो ये मोर से नॉर्थ इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 1143. Who has defined law as a general rule of external action enforced by a sovereign political authority? Who has defined law as a general rule of external action enforced by a sovereign political authority? A. Pollock, B. Holland, C. Bolby, D. Cohen. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Holland. Holland has defined law as a general rule of external action enforced by a sovereign political authority.
Question number 1144. The Hindus opposing polygamy illustrates. The Hindus opposing polygamy illustrates. A. Morse, B. Law, C. Folkways, D. Convention. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, हिंदूज अपोजिंग पॉलीगामी इलुस्ट्रेट्स मोर्स। क्वेश्चन नंबर 1145. What has Green described as a cheapest kind of control, the most widely applied punishment? ग्रीन ऐसे डिस्क्राइब किया है किसको? आज द चीपेस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल, द मोस्ट वाइडली अप्लाइड पनिशमेंट। ए पनिशमेंट, डी रिडिक्यूल, सी ऑस्ट्रासिज्म, डी कॉन्साइंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी कॉन्साइंस। Green described conscience as the cheapest kind of control, the most widely applied punishment. Question number 1146. DS classified the means of control as symbolic and forceful. Symbolic and forceful. A. Scott, B. Parsons, C. F.B. Lumley, D. Karl Mannheim. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, F.E. Lumley classified means of control as symbolic and forceful. Question number 1147. Who believes that money economy disintegrates customs? मनी इकोनॉमी जो है कस्टम को डिसइंटीग्रेट किया है, ऐसे किसने विश्वास करते हैं? ए. माकाइवो, बी. कार्ल मनहेम, सी. समनर, डी. पार्सन्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, कार्ल मनहेम believes that the money economy disintegrates customs. Question number 1148. Who held fashion to be the leveler of custom? Who held fashion to be the leveler of custom? A. Spencer, B. Morton, C. Tyler, D. Morgan. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, स्पेंसर। स्पेंसर हेल्ड फैशन टू बी द लेवलर ऑफ custom. Question number 1149. DS is the repository of social heritage. DS is the repository of social heritage. A. Custom, B. Tradition, C. Law, D. Culture. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, custom. Custom is the repository of social heritage. Question number 1115. ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 1150. द बेसिक एलिमेंट्स बाय व्हिच टू प्रेडिक्ट बिहेवियर आर. द बेसिक एलिमेंट्स बाय व्हिच टू प्रेडिक्ट बिहेवियर आर. ए. गोल्स, बी. नॉर्म्स, सी. वैल्यूज, डी. लॉज. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, नॉर्म्स. द बेसिक एलिमेंट्स बाय व्हिच टू प्रेडिक्ट बिहेवियर आर नॉर्म्स. ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।